Okay, so let's begin. Okay, so this is the third and the last lecture on diatomic molecules. And today we will mainly focus on the excited states of hydrogen ion. Last time, if you remember, we discussed the ground state of the hydrogen ion using a linear combination of atomic orbitals as the starting molecular orbit, and then using the variational principle to find the eigenenergies and eigenstates of the Hamiltonian. So let me just recap quickly, and then we will discuss a way to find molecular orbitals for the excited states. So we have hydrogen ion, molecule ion, H2 plus. So the Hamiltonian was minus half del square minus 1 over RA minus for RB. The situation is like this. Let's say we have z-axis A, B. This is the position of molecules, origin, the electron, the distance from here RA, from here RB, and suppose this is R, and this is angle theta. Okay, so this was the setting. For ground state, and actually before this, in general, we discussed that we can write the wave function as product of xi eta functions, and the phi part is exponential iota m phi because this has axial symmetry, so it should be, you know, function of LZ, so it should have this form. And just to repeat the language, if the lambda, which we define as magnitude of m, is 0, we call the solutions sigma, and if it is 1, pi, if it is 2, delta, 3, phi, and so on. Okay. All right. For ground state, we found that the solutions come out to be of this form. Phi 1 was 1 SA, 1 SB. This is overlap integral. And this corresponded to an even state. So we write it sigma G. And since this corresponds to a state that if the atoms dissociate, this will go to like 1s state. So we write 1s. And the second solution was 1sa, 1sb, 1 minus SAB, and this was sigma. This is odd state, and this was also an anti-bonding state. क्योंकि इसकी जो energy है, वो there's no minima in the graph of U. So U is whatever this, you know, W12 plus 1 over R. So for this, U has this form, and for this,
U has this form. So there's no minima. So it's an anti-bonding state, and there's a minima. So there's a bonding state. And by the way, just to recall, the difference between this and this energy, we called it DE. और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है ना, वो इंडिकेट करती है कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल डीप पड़ा हुआ है एज कंपेयर टू दी सेपरेटेड स्टेट, आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी टू ब्रेक अप दी एटम इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. सो दे आर एसेंशियली डिसोसिएटेड. सो दिस डेप्थ गिव्स अस measure of the bond. जी, एंटी बॉन्डिंग. जी जी. So you just mean that it's an odd state. So odd और even का ये है कि अगर मैं इसकी वो probability distribution draw करूं as a function of z, so इसकी जो probability distribution कुछ यूं करके है. Okay, so there's a non-zero probability of finding it here, and not only that, when you flip it around origin, this keeps the same form. But this odd state, something like this, कि अगर ये इधर पॉजिटिव है तो ये इधर नेगेटिव है. And actually it's not difficult to see that we should get this minus state with that, क्योंकि अगर आप ये रिकॉल करें, जो 1s ऑर्बिटल है, इट्स सिमेट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? और जो इसका 1s ऑर्बिटल है वो भी सिमेट्रिक है. ये अब मैंने इलेक्ट्रॉन का पाथ ड्रॉ नहीं किया, इट्स अ कंटूर प्लॉट ऑफ साई मॉड, बल्कि इसको मैं लिखूं, ये 1sa का है और ये 1sb का है. तो इसको आप दो तरह से इमेजिन कर सकते हैं. यूं भी इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इट्स हाई हियर एंड देन इट्स डिक्रीजिंग. सो यहाँ पे भी इट्स हाई हियर एंड देन इट्स डिक्रीजिंग. अब जो प्लस स्टेट है इसमें दोनों वेव फंक्शंस ऐड हो रहे हैं. दे शुड करस्पॉन्ड टू, अगर आप इस तरह से देखें तो दिस हैड अ फॉर्म लाइक दिस. ये ए, ये बी की साइड है. That there's a probability high here, but there's a finite probability of finding here as well. And ज़ाहिर है दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे, तो कुछ भी जितनी भी वैल्यू यहाँ पे वो ऐड होकर कुछ बन जाएगी, क्योंकि नॉन जीरो है यहाँ पे. तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में देखें तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देम हियर, बट देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देम हियर एज वेल, क्योंकि दोनों तरफ से ऐड हो रही है. और जो डिफरेंस वाला वेव फंक्शन है ये वाला, दिस हैज टू बी ऑड, क्योंकि अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये वेव फंक्शन यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू है, लेट्स से 10, तो जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों इससे एक जितने फासले पे हैं और ये होमोन्यूक्लियर वेव मॉलिक्यूल है कि दोनों एटम सेम है, तो इसका मतलब है दोनों की जो वेव फंक्शन की वैल्यू है इस सेंट्रल पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम है. तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आई शुड गेट अ जीरो हियर. ठीक है मैं. सो एंड क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ यूं करके सी आ जाएगी, जो माइनस स्टेट है. जो वेव फंक्शन को अगर देखें ए बी, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे तो ये वेव फंक्शन ऐसे जैसे है, तो इस वाले ये माइनस होगा तो ये यूं बन जाएगा, क्योंकि उसमें से उसको माइनस किया है तो वो प्लस साइन के साथ था तो इट बिकम्स माइनस. सो दैट्स व्हाई इट्स एन ऑड स्टेट. ओके, और इसके लिए वैसे बाय द वे W2 की वैल्यू ज्यादा है और W1 की वैल्यू कम है. इसको हमने W1, दिस करस्पॉन्ड्स टू W1, this corresponds to W2, and just to recall, W1 is an upper bound for ground state,
जो W2 है, it's an upper bound for the second energy level. ठीक है, so इसका मतलब है कि in the ground state, if you have this H2 ion, the electron would go into this orbital, and that's why we have a stable molecule ion of hydrogen that exists that we can find. अगर इसकी एनर्जी कम होती, by the way, then we wouldn't have been able to get, a bonding state for this molecule. Okay, so any question about this thing? Perfect. So आज हम जो है, we are going to concentrate on excited states. अब जो excited states हैं, we can in the first approximation start thinking in the same manner as we did for the ground state. ठीक है, तो in general जो n is equal to 2 हाइड्रोजन की स्टेट है, लेट्स से आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे है, सपोज दे आर बोथ, आप इसकी जो n is equal to 2 स्टेट है उसको लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स लेते हैं. सो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो है 2sa प्लस 2p0 प्लस 2p प्लस 1 2p माइनस 1, इस तरह से लिख लें, एंड दिस इज एक्चुअली ऑल फॉर a atom. Similarly for b atom we have a combination of these things. बल्कि तो अगर आप जनरल स्टेट लिखते हैं तो इट शुड बी let's see C1 2s C2 and so on, you can keep going. अच्छा, इसमें अब लेकिन जो 2s स्टेट है ना, इट्स स्पेशल, क्योंकि इसमें जो दो क्वांटम नंबर है वो इन सब से डिफरेंट है. इसका L भी डिफरेंट है, इसका L 0 है, इन सब का L 1 है, और इसका जो ML है वो भी 0 है, जबकि इसका ML 0 है, इसका 1 है, इसका -1 है. सो दिस इज अ सेपरेट स्टेट. सो सिमिलरली जो इसकी 2s स्टेट है, it's quite different from the rest. So one molecular orbit that we can construct is actually of this type: some Ca 2sa, some Cb 2sp. इन जनरल तो वैसे हमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से स्टेट लेनी चाहिए, लेकिन people have worked out and they saw that this corresponds to like 4 molecular orbitals, and each one of them has predominantly one of these present. So like one orbital has mainly this function, but there might be some little bit of p part as well, but mostly it is this. So for our discussion we can just imagine that the first excited state is just the linear combination of 2sa and 2sp. So using these two atomic orbitals we can try to construct the molecular orbital for the H2 ion. इस बात को समझ रहे हैं कि in general it's a linear combination of all of these, लेकिन चूंकि ये इस तरह से चलेगा C1 2s a C2 2p0 and so on, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो we get 4 solutions and each solution has like अगर जो एक solution है उसमें ये दोनों कोफिशिएंट, लेट्स से ये इस तरह से है कि इसका स्क्वायर आपको देता है 0.9 और बाकी चारों के जो स्क्वायर्स को ऐड करें तो यू गेट 0.1. So it is mostly a character which is a sum of these two. Similarly, we can get an orbital which has a character proportional to 2p0. So let me call this one. Let's not give it a name. So another one could be some Ca. Let's use another coefficient dA 2p0 dB 2p0 B, and this is B. So then we can have another one, some EA. Acha, we have a choice, either we use 2p plus 2p minus
or maybe we can use 2px and 2py, 2px. So this is B atom, this is A atom, to construct, the eigenfunctions that corresponds to this ion. So either अगर x y चूज करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि वो सारे रियल हैं, और लेकिन वो फिर LZ के फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि x y इटसेल्फ जो है वो LZ के फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये px अगर आपको याद हो तो वी कंस्ट्रक्टेड इट as a sum of p plus and minus, और कोई कांस्टेंट था, and then py was something like this. अलबत्ता p plus p minus को यूज करें तो you can get functions that are eigenfunctions of LZ operator. लेकिन फॉर्चुनेटली ये px जो है इसमें m की मैग्नीट्यूड एक ही है, क्योंकि अगर इसमें m+1 इसमें m-1 है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में 1 है. So this still corresponds to the same lambda state, क्योंकि lambda जो है that just relies on magnitude of m. So that's why we can either use this one or +1 and -1 states. And let's, for the purpose of this discussion, stick with px py orbital. So another combination is some coefficient fa, 2pya, fb, 2pza, 2pyb. अच्छा, इसमें ये जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दीज, और ये वाले भी. सो मोस्टली व्हेन वी सॉल्व दिस वन, इसमें ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हाई होते हैं, बाकी लो होते हैं. लेकिन जो ये वाले दो हैं ना, ये चूंकि दोनों डीजेनरेट भी हैं, इसका भी m 0 है, इसका भी जो m है वो 0 है, जो उसका मोमेंटम का z कंपोनेंट है. सो इन जनरल ज्यादा एक्यूरेट ये होगा कि आप जो अगर वेरिएशन प्रिंसिपल यूज करना चाहते हैं तो इन चारों को मिक्स करके इस्तेमाल करें. उस सूरत में भी सोल्यूशन फिर भी उसी तरह के निकलते हैं कि ये दो को, एक सोल्यूशन में ये दो हाई हैं और ये दो लो हैं, और दूसरे सोल्यूशन में ये दो हाई हैं और ये दो लो हैं. सो दिस इज स्टिल वैलिड, but you have to keep in mind that general solution would have mixing of this s and this p naught orbital more than with mixing of these. लेकिन जो accuracies हैं, let's keep them aside and try to develop a simplest possible mental picture of the H2 molecule. So for the simplest one, जिस तरह हमने इसके जो 1s को मिला के एक molecular orbital बनाया, similarly we can think about molecular orbitals composed of 2s, 2p naught, 2px and 2py atomic orbitals. अलबत्ता और इसका जो solution है, अब you can do exactly the same way जैसे हमने पहले किया. So I'm not going to do those solutions. I'm just going to discuss their properties and try to develop a picture yeah, of the solutions. जिस तरह हमने 1s का किया है, इसके लिए तो you can exactly imagine the same things would happen. You will get two solutions. One would be even, one would be odd. One would be bonding, one would be anti-bonding. ठीक है. और अब अगर solutions की अगर labeling की बात करें तो you can imagine कि we will have, जिस तरह मैंने 1sa और 1sb को मिक्स किया तो I had a sigma G 1s state and sigma U 1s state with star. So जब हमने 1s को मिक्स किया, we got this thing. Similarly, if we mix 2s, we get two solutions. और ये भी होंगे sigma G2s, sigma U2s. और इसमें भी ये जो बॉन्डिंग स्टेट है वो इवन है और जो एंटी बॉन्डिंग स्टेट है वो ऑड है.
अब जो 2p है उसको अगर हम मिक्स करें तो वी गेट 6 सॉल्यूशंस। And the lowest lying is actually pi odd 2p, and this corresponds to actually x and y. And then a very near state is sigma g 2p. ये जो सिग्मा स्टेट है ये बन रही है 2p नॉट स्टेट, ठीक है, क्योंकि 2p नॉट में m जीरो है, उस 2p नॉट में भी m जीरो होगा, उनको मिलाएं तो वन स्टेट इज दिस सिग्मा स्टेट जिसका जो m है वो जीरो है। सो यहाँ पे मुझे नॉट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस सिग्मा जीरो मीन दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम नॉट। एंड देन देयर इज pi g 2p स्टेट। अच्छा, ये हमने चूंकि कंप्यूट नहीं की, आई एम जस्ट यूजिंग somebody's result, so you'll just have to take me at my words कि ये जो मैंने एनर्जी की डिस्टिंक्शन की है ना, हमें पता है कि जो पी नॉट है वो दो स्टेट में होगी, तो चूंकि एम जीरो है वी आर गोइंग टू गेट टू सिग्मा स्टेट्स। अगर उनको सॉल्व करें ना, व्हाट पीपल हैव डन कि जो ऑड स्टेट, जो इवन स्टेट है और जो ऑड स्टेट है वो इस तरह से आती है, ठीक है, ये टू पी नॉट को करस्पॉन्ड करती है। जो टू पी एक्स है ना और टू पी वाई, वो दोनों जो है वो असल में एग्जैक्टली सिमिलर स्टेट्स में ब्रेक होती हैं। सो दोनों पाई स्टेट में आती हैं और दोनों में जो ऑड स्टेट है वो बॉन्डिंग है और जो इवन स्टेट है वो एंटी बॉन्डिंग है। सो इसमें एनर्जी मिनिमा आता है, इसमें एनर्जी मिनिमा नहीं आता। और ये जो लिखी ना 1 2 3 4 स्टेट्स, इनको आपको 6 स्टेट्स के तौर पे पिक्चर करना चाहिए। दो ये हैं, ये दोनों डीजेनरेट है, पी एक्स की भी है पी वाई की भी है। ये पी नॉट है, ये पी एक्स पी वाई के लिए, और ये पी नॉट है। ओके, सो दिस इज what we get in terms of solutions. So before I discuss a couple of examples, let me just try to find out the probability distribution. 1s की तो आपने देख ली है कि we have two types of sigma bonds. जो bond है वो sort of linear charge distribution है उस लाइन के along, और जो एंटी बॉन्डिंग है ज्यादा चार्ज या इस न्यूक्लियस के पास है या उसके पास है, दरमियान में चार्ज बहुत कम है। और वो जो चार्ज रिपल्जन है फ्रॉम सेंटर बिकॉज ऑफ द जीरो इन द मिडल, that makes it an anti-bonding state. There's no net attraction at any point, at any distance between the nucleus. इसी तरह जो 2s states हैं उनकी अगर आप बनाते हैं ऑर्बिटल्स तो वो भी ऐसे बनेंगे। तो जो 2s है वो भी उसी तरह से। सो बट लेट मी नो डिस्कस 2p नॉट। जो 2p नॉट है इसका जो वेव फंक्शन है वो कुछ यूं करके होता है। लेट्स से जो ये है एक और ये है, ठीक है, और ये एक एटम का है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको पहले एटॉमिक जरा रिव्यू कर दूं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल में देखें तो इफ यू रिकॉल, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। जो 2p नॉट है दिस इज एसेंशियली 2pz। जो 2px है इट्स 2px 2py 2py। तो 2pz जो है उसका है जो वेव फंक्शन है, इट्स समथिंग लाइक दिस। दे ऑल मेक this type of distribution. So this is 2p naught, और जो 2px है that is also something like this, और जो 2py है something like this। तीनों जो है उनकी probability distribution exactly same है, सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क, राइट, दैट्स ऑल। और अगर वेव फंक्शन को देखें बाय द वे
तो इनका जो वेव फंक्शन है वो अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। तो दोनों का ना डिस्टिंक्शन आपने सेम रखनी है, एक साई है और एक साई मॉड स्क्वायर है। और जब भी आपने बॉन्ड्स के बारे में सोचना है, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ साई, क्योंकि दैट्स वेयर द एक्चुअल फिजिक्स इज हैपनिंग। साई मॉड स्क्वायर जस्ट रिलेट्स टू द ऑब्जर्वेशन, कि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो जब एस ऑर्बिटल की बात करें ना, यू डोंट हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ साई। क्यों? क्योंकि साई को अगर आप पॉजिटिव ले लें थ्रू आउट या थ्रू आउट माइनस ले लें, इट डजंट मैटर, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों स्फेरिकली सिमेट्रिक है। बट व्हेन इट कम्स टू पी ऑर्बिटल, वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द साइंस एज वेल। जो साई वेव फंक्शन है पी का, वो अगर एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ये पॉजिटिव लेते हैं ये नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में वो स्टिल आइगन फंक्शन, क्योंकि आप पूरे साई को माइनस से मल्टीप्लाई करें उसको कुछ भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों तरफ साइन जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो 2p0 है, अगर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, जो 2px है वो इस एक्सिस के अलावा इस तरफ पॉजिटिव है तो उस तरफ नेगेटिव है। अब इसकी मदद से लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अगर मैं z की बात करूं तो ये z जो 2p0 है, so this is 2p0, so it has something like this and then something like this. Now suppose this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, and actually the way these diagrams are drawn, they are drawn for this thing. So you can imagine a z-axis of this thing pointing this way and the z-axis of this atom pointing this way. So then this is plus and this is minus, but really it doesn't matter much, as you will see later. So अब ये फर्स्ट से आपके पास वेव फंक्शन है, अगर इनको ऐड करें तो सम किस तरह का बनना चाहिए। ऐड, ये माइनस है इधर, ये माइनस है, तो यहाँ पे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वेव फंक्शन को। क्यों? क्योंकि ये इससे इतनी दूर है कि इधर ऑलमोस्ट इसकी रीच 0 है, और ये वाला जो पार्ट है वो इस मॉलिक्यूल के इस एटम के वेव फंक्शन इतना दूर है कि ये वेव फंक्शन वहां तक जाते जाते वैसे मैग्नीट्यूड 0 है। सो इधर तो ये दोनों सेम ही रहेंगे। दरमियान में देखते हैं, क्योंकि दरमियान में सेंट्रल पॉइंट पे दोनों की मैग्नीट्यूड तो एक्जैक्टली बराबर हो जाती है। सो दैट्स वेयर द साइन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लस प्लस साई है, तो दोनों जब इनको मैं ऐड करूंगा, सो 2p0 a plus 2p0 b, so I'll get something like this. यहां पर जो मेरा वेव फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एडिंग। So this corresponds to this one. So let me draw wave function as well. So ये बन गया। जो ये वाला है जो एंटी बॉन्डिंग वाला था, this is sort of ये इधर नोडो पे थी, जो ये है ये यूं है। सिमिलरली इसकी दोनों के एग्जैक्टली ये नहीं, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है। अलबत्ता अब ये जो हमने देखा है कि जब ऐड हो रहे हैं तो आई एम गेटिंग दिस थिंग विच इज द इवन स्टेट। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस। सो ये जो ऑर्बिटल है इसकी जो शेप है वो इस तरह से होगी। अगर आप साइन भी लिखेंगे दिस इज माइनस प्लस, लेकिन अब टोटल ऑर्बिटल में साइन आई डोंट केयर टू मच, बट लेट्स जस्ट राइट इट, क्योंकि जब अब ये सिर्फ एक ही है, अब हमने इस मॉलिक्यूल का किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन तो नहीं देखना। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन देखना होगा, देन अगेन आई हैव टू वरी अबाउट द साइन ऑफ द वेव फंक्शन, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, उसका ख्याल रखना है। लेट्स सी द शेप ऑफ द ऑर्बिटल फॉर द माइनस स्टेट। तो जब इसको हम 2p0 a माइनस 2p0 b करते हैं तो क्या होना चाहिए। ये b है, ये a मॉलिक्यूल है। अब इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं तो पहली बात है कि ये सेंटर में तो 0 आ गया, क्योंकि जो भी वैल्यू इसकी वजह से यहाँ पे है वही वैल्यू इसकी वजह से यहाँ पे, तो माइनस की वजह से ये 0 हो जाएगा। और अब इस जगह पे ये प्लस में से माइनस करूंगा तो ये चूंकि इधर आते आते कम हो चुका है, तो आई विल गेट लिटिल बिट ऑफ प्लस। ये जो है दिस माइट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ प्लस, एंड हियर
I get minus and here I get plus. ठीक है ना, ये इसमें से इसको माइनस किया तो बेसिकली इसके साइन चेंज करके इसमें ऐड करना. So that अब इसमें भी we have a charge build up on the outside and charge repulsion from the inside of the inside space of the nuclei. So that's why this is an anti-bonding state. So this one corresponds to a picture like this. So most of the wave function is out of the nuclei. ये समझ आ गई इस चीज की? ठीक है मरियम, समझ आ गई? परफेक्ट. सो नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करता यार, ऐसे करता ही नहीं है पहली बात. नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नहीं करता. चले, लेट मी ट्राई टू सी कि दूसरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है. साजिद आप जरा इनका जवाब दें. मरीम आपको समझ आ गया सवाल इनका? उनका सवाल ये है कि ये अभी मालिकुल की बात नहीं कर रहे हम, हाइड्रोजन ऐसे ही ना हाइड्रोजन एटम पे चले गए. उनको एक पुराना सवाल याद आ गया कि वो न्यूक्लियस होता है ना, और पी ऑर्बिटल में वो कहते हैं कि वो हम यूं 8 फिगर बनाते हैं. तो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा होता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर से कैसे गुजरे, उसमें कोलैप्स क्यों नहीं करता, ये उसको क्या होता है? हाँ मतलब कि हाँ, तो साजिद जो है ना जिनका जवाब दे देंगे इसको. ठीक है, चले मरीम आप जवाब दें. एक पॉइंट पे पल्सन की होती है कि वैसे ट्रैक कर रहा हूं तब उनकी मैंने कम से पॉइंट पे पल्सन ग्राफ बनाता हूं. जी मम्मा आप बताएं. हाँ देखिए, इसका तो मतलब है कि सारी जिंदगी अब तक जाया कर दी है. इस सवाल का मतलब सही बात कि इतनी देर से हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें तो नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्या उसका पाथ है. और जब हमने ये भी था, हमने तो कहा, मैंने बार बार एम्फोसाइज किया था कि ये कोई इलेक्ट्रॉन का पाथ तो नहीं है, ये तो उसके वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी, वो जो है उसका वो कंटूर है एक सेंस के अंदर, वो एक लाइन है विच सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू रिप्रेजेंट साई. क्वांटम फिजिक्स में तो वी आर नेवर कंसर्न विद, वी कैन नॉट आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के पाथ क्या है. एट बेस्ट वो तो हम ये जो कंटूर लाइन है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जैसे मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड हेयर एंड लेस लाइकली टू बी फाउंड हेयर. इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है. ये तो चलो अब मैंने हाथ से बनाना है तो मैं अब यूं बनाऊंगा फिर यूं बनाऊंगा, ये यूं तो जरा टाइम लगेगा, तो आई जस्ट मेक इट लाइक दिस. नहीं वो गलत है सिमुलेशन. वी डोंट नो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है. नहीं नहीं, लेकिन उसके भी अकॉर्डिंग वो प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप मेजर करें, यू हैव समथिंग कि यहाँ पे आप कोई ट्रैप लगा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन गुजरे तो पकड़ा जाए, तो वो ट्रैप आप जगह जगह पे लगा के एंड देन यू प्लॉट, तो इट्स मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड हेयर एंड हेयर देन हेयर. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यूं जा रहा है और यूं जा रहा है. नहीं नहीं नहीं, वो सिमुलेशन सारी गलत है. तो ये सारे प्लॉट्स ऐसे ये भी हैं. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी काफी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ये जो हम ये दायरों से बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब एक ही इलेक्ट्रॉन वो पहले यूं जाता है, फिर यहाँ से गायब हो जाता है, फिर यहाँ पे यूं जाता है, इस तरह तो नहीं हो रहा। So we never ask a question about trajectory in stationary state problems. We don't know what's happening. हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो गलत जी मरी। हाँ तो देखें, अभी हमने लिया हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो जब आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो ये पिक्चर सारी फिर डिस्टॉर्ट हो जाती है, एंड सम लेवल माइट गो अप एंड डाउन। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे ये सिग्मा जी 2p है ना, और पाए यू 2p, इवन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस इट्स ओनली लाइक 0.009, आई थिंक समथिंग दैट्स लाइक एनर्जी दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो इनमें से काफी मॉलिक्यूल जो करीब होते हैं और वो फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन की वजह से वो लेवल अप डाउन हो जाते हैं थोड़े से। दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, but more or less it's a very good picture, a way of explaining molecules with few electrons. और असल में उससे भी ऊपर हो जाता है, उससे ऊपर भी ये पिक्चर बड़ी हद तक वैलिड रहती है, और उसकी वजह सिंपली ये है कि व्हेन यू हैव टू हाई जी नंबर एटम्स और उनका बॉन्ड स्टडी कर रहे हैं, तो अगर इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 के पास है, तो उन 50 में से जो 45 इलेक्ट्रॉन है वो तो वैसे ही न्यूक्लियस के साथ बड़ी टाइटली बाउंड है, तो दूर करके कुछ 2-4 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट एसेंशियली देन बिहेव्स वेरी सिमिलर टू दिस अगेन। सो ये पिक्चर अगरचे एग्जैक्टली तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उनमें भी ये पिक्चर बड़ी हद तक वैलिड रहती है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी यूजफुल वे ऑफ टॉकिंग अबाउट एट लीस्ट होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, एक और भी किसी का सवाल? अच्छा, तो अगर आपको ये साई को आप पिक्चर करना शुरू हो गए ना, तो देन यू कैन क्विकली सी के व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ शेप ऑफ अदर बॉन्ड्स। अगर मैं अब लेता हूँ, ये z एक्सिस है, ये a है, ये b है, let's talk about the mixing of 2px orbital. So this is 2px, ये भी 2px है, let's say this is positive minus positive और minus, क्योंकि ये दोनों तरफ ना इनका साइन साई का उल्टा है। अब अगर इनको आप ऐड करते हैं 2px a प्लस 2px b, तो अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ऐड करने से ये ज़ाहिर है काफी यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ भी बढ़ जाएगा। सो आई विल हैव समथिंग लाइक दिस। और जो 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन या वेव फंक्शन है, आप इसको रोटेट करें अराउंड z एक्सिस, देन यू कैन गेट इट। नहीं, ये चूंकि z के अराउंड सिमेट्रिक नहीं है, so this will not be symmetric, so this is like a loop here, so it's going to be a zero plane over here। क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक सेंट्रल, ये जो प्लेन है ना, अगर ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, so xc प्लेन जो है तो इसकी नोडल प्लेन है, वहां पे ये वेव फंक्शन जीरो होगा। so this is this orbital because of this. Can you guess that would it be bonding or anti-bonding? Okay, let me write what would happen if we subtract them. अगर subtract करें, we'll have situation like this. इसमें से इसको subtract करना, यानी इसको माइनस इसको प्लस करके आप ऐड करना है। So our situation would be something like this. ये let's say ये प्लस है, ये जो है इसको माइनस किया हुआ है, अब दरमियान में ये जीरो हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो ये वेव फंक्शन यू स्प्रेड हो रहा है यूनिफॉर्मली तो नहीं, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, लेकिन जो भी है यहाँ पे इक्वल है। ये प्लस में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो सेंटर में नोडल प्लेन है, सो इसका साइन अगर प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस होगा। सो सिमिलरली ये अगर माइनस है तो इसको जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा। सो जो जो ये ऑड ऑर्बिटल है वो इस तरह से है। अब इसमें ये है कि मोस्टली यू नो द इलेक्ट्रॉन्स आर हियर एंड देन हियर एंड हियर, यहाँ पे देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देम हियर एंड हियर, क्योंकि इस सेंट्रल लाइन में और इस प्लेन में 0 है। सो दैट्स व्हाई इवन दो दिस इज एन इवन स्टेट बट दिस इज एन एंटी बॉन्डिंग स्टेट, because most of the time the electrons are spending in a region which is not exactly in between them. यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो है which is like the central point, but mostly they are here और चूंकि ये nodal plane भी है जहाँ पे 0 है। On the other hand यहाँ पे देखें so even though ये exact यहाँ पे 0 है but you know there's a this loop here which is you know making the electron spend most of the time you know between this, and so this that's why this is a sort of a bonding state. So even though this is odd, but this is a bonding state, and you can check that this is odd as well. क्योंकि अगर आप इसको origin के around flip करें, नहीं, sorry, ये plus है, ये minus है, odd कौन सी हुई और even कौन सी हुई? वो even और ये odd है, ऐसे ही है ना? इसको flip करें तो this remains the same. So this is the even state. And this is the odd state. और मैंने कौन सी लिखी हुई है बॉन्डिंग, जो इवन है वो एंटी बॉन्डिंग है। सो ये जो है ये एंटी बॉन्डिंग है क्योंकि नेट जो है ना ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दरमियान में कम है और इसमें चूंकि ये प्रोबेबिलिटी है दरमियान में होने की, सो दैट्स व्हाई दिस इज बॉन्डिंग स्टेट। क्योंकि देखिए ना ये है ना सेंट्रल रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ सम टाइम or sufficient time between in a region between the nuclei, then this is a bonding state. कोई बात नहीं, वो एक जस्ट एक प्लेन ही है, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये देखें ये काफी रीजन है, ये काफी रीजन है, इसकी निस्बत जो है इसमें ये ज्यादा है। जो एग्जैक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का वो तो डेफिनेटली यू के वो कंप्यूटेशन से आता है। व्हेन वी कंप्यूट यू दिस शोज अ प्रोफाइल लाइक दिस एंड दैट शोज समथिंग लाइक दिस। So the other important thing is this कि अगर तो यहाँ पे माइनस साइन है तो minus doesn't always mean that it is an odd state. So and this bond by the way is called pi bond. So this is pi और चूंकि ये even है this is pi g और this is 2px and this is not a bonding state. Even है अलबत्ता collapses to 2px. अगर आप 2py को देखें तो वो भी एग्जैक्टली ये सिचुएशन बनेगी। py का ऑर्बिटल इंस्ट्रक्शन भी होता है लेकिन बाकी चीज एग्जैक्टली सेम है। उसमें भी एक जो पाई बॉन्ड है उसी तरह से बनेगा और जो एंटी बॉन्डिंग स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। ओके, सो लेट मी जस्ट मेक द शेप्स। सो ये जो स्टेट है ये थी इस तरह की बनी है और जो ये स्टेट है ये बनी है सो लाइक दिस। अच्छा, यहां पे आप देखें कि हमने जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स हैं वो सारी या तो पाई है या सिग्मा है। अगर आप 2p से 2 से 3 वाले पे जाते हैं n इज इक्वल टू 3 जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनको आपस में कंपेयर कराते हैं देन you will get delta bonding states as well. So there might be sigma bond, pi bond, and delta bonds, and so on. And another comment is this that यहाँ पे हमने सारे देखा या तो प्योर pi bond है या प्योर sigma bond है. But in general, as we were talking over here, कि हमारी ना तो कोई प्योर 2s2sb की कंबाइंड स्टेट है ना प्योर 2p की स्टेट है,
तो इवन इन दिस वन अगर आप इनको एग्जैक्टली सॉल्व करें बाय स्टार्टिंग विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल n is equal to 2 state and n is equal to 2 state, so what you will end up with, for example, mostly this but little bit of this as well. So there will be some hybridization of sigma and pi bonds as well. So in reality that also happens in most of the atoms, that there's no pure sigma or pure pi bond even between homonuclear diatomic molecules. But more in most of the cases, you know, we can think in terms of either sigma or pi bond. But in reality, there's always a hybridization of different types of bonds. Okay, so let's take a couple of examples now. And let me start with the H2. So this is a multi-electron molecule. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियाई है. In reality तो होना ये चाहिए कि for this H2 molecule you should start with your full Hamiltonian, and even if you know you assume your wave function to be sum of you know these and maybe these, then you put in there, अगर आपके पास एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को तो ऑलरेडी हमने सॉल्व इस सेंस में किया हुआ है. दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए आपको 3 और हैमिल्टोनियन में टर्म डालनी पड़ेगी. इसकी अट्रैक्शन इस तरफ, इसकी अट्रैक्शन इस तरफ और इसकी रिपल्शन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से. And then you solve that, but we are not going to do that in this course because that's now a realm there where really you can't do much without access to a computer. And you use the same technique, हमने variation perturbation technique सारी पढ़ ली हैं, so you can do, you know, with that. But let's try to understand, you know, few molecules using this simplest possible picture. ऐसे ही जैसे आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में यूजुअली सोचते हैं. अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं, इफ यू थिंक के यूजिंग पॉलिस प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें 2 आ सकते हैं, 1 अप 1 डाउन. सो इट मीन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर बोथ इन बॉन्डिंग स्टेट. तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक, आई कैन राइट सिग्मा जी 1s स्क्वायर. और चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग स्टेट में है तो H2 मॉलिक्यूल जो है ये आपको स्टेबल स्टेट में मिलेगा और मिलता भी है, जैसे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस है. सो इवन और इसके जो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग स्टेट में, सो DE इज क्वाइट यू नो हाई. इट्स मीन के जो ये वाली वैली है दिस इज क्वाइट डीप. ओके, बिकॉज जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग स्टेट में होंगे ये उतनी ज्यादा डीप होगी. तो दिस इज क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल अप टू अ वेरी हाई टेम्परेचर. डिसोसिएशन एनर्जी. सो वी सी दिस मॉलिक्यूल ऑल द टाइम. अब पीरियोडिक टेबल में अगला एलिमेंट है हीलियम. सो जो हीलियम है, हीलियम 2, अगर तो हीलियम आइन को देखते हैं, लेट मी जस्ट फर्स्ट सी द मॉलिक्यूल. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन. तो 4 इलेक्ट्रॉन में से अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, 2 इधर आगे 2 इधर आगे, सो 2 बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग में है. So generally when we have a situation that we have 2 electrons in bonding and 2 electrons in anti-bonding, they almost cancel each other's effect. ये ऐसी है कि जो bonding वाले electrons हैं, they are making the nuclei attract with each other, attract towards each other, and the anti-bonding electrons, they are trying to force the nuclei away from each other. So at at room temperature, we won't see any helium molecule, because the configuration is sigma g1s square, sigma u star 1s square. So 2 and 2, the net effect is 0. By the way, there's the term we call bond order, जो कि दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिफरेंस का हाफ होता है. तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि 2 - 2 is 0.
यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है। सो आप हाइड्रोजन को यूं भी लिख सकते हैं यूजिंग स्टिक मॉडल, यू नो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है एसेंशियली, सो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो इसको यूं करके, और देयर इज नो हीलियम, यू नो, ग्राउंड स्टेट बॉन्ड। अलबत्ता इफ यू हैव लेट्स से हीलियम आयन, एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया हुआ, देन यू कैन फाइंड दिस मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, एक इधर होगा इन ग्राउंड स्टेट, एंड देयर इज सम अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, सो यू कैन फाइंड दिस मॉलिक्यूल। और इवन अगर आपके पास हीलियम आयन ना भी हो, अगर हीलियम न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल है बट इट्स इन एक्साइटेड स्टेट, even then there is a possibility of that molecule to exist. For example, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक यहाँ पे जंप कर दे, so you have if you have a situation of sigma g 1s square, sigma u star 1s and sigma g 2s. So if this is a situation, then 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में है, एक एंटी बॉन्डिंग में है, so there would be a bond, single bond, क्योंकि 3 minus 1 is 2, so 2 का half 1 है, so there is a bond order 1. We can find this, and people, you know, observe this molecule, can observe easily. सिर्फ इसका एक ही मसला है कि ये बहुत momentarily exist करेगा. As soon as this molecule electron decays to lower state, the electron will, you know, go apart. Okay, so let's think about lithium. So जो lithium है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में. So do you think there will be a bond, there will be a stable lithium molecule or not? क्यों साजिद? क्या lithium वैसे तो वो होता है ना सॉलिड फॉर्म में, लेकिन अगर उसको आप गर्म करके evaporate कर लें, you convert it into vapors, will lithium molecule exist or not? क्यों? नहीं, मैं एक्साइटेड कि मैं सिर्फ ग्राउंड की बात कर रहा हूँ. क्या लिथियम ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? एक लिथियम एटम में 3 होते हैं, 6 हो गए, मतलब क्यों? 2 इसमें सिग्मा जी 1s, सिग्मा यू स्टार 1s में 2 आ गए, सिग्मा जी 2s 2 इसमें आ गए. हाँ, तो 2 और 2 4, 4 माइनस 2 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? सिंगल बॉन्ड होगा इनके दरमियान, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 2 इज 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 का हाफ जो है वो 1. सो वी विल सी दिस. But let's see one very, you know, interesting thing. अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इधर जंप करा देते हैं, so you can shine a photon and the electron jumps from here to here. Will the molecule still continue to exist or break apart? क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो अब एक इधर हो गया, 2 इधर, 3 हो गए एंटी बॉन्डिंग में, और एक इधर रह गया था, 2 इधर. सो 3 and 3 बॉन्डिंग में, 3 एंटी बॉन्डिंग में, it will, you know, fly apart. So it means there are other ways to break apart a molecule than just, you know, trying to force the atoms apart. अगर आप इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है उनके साथ भी प्ले करें, so you can come to a state where the, you know, the net attraction between nuclei is no longer attractive. जी जी, हाँ वो यानी there is no reason for nuclei to be, you know, stick together. चले साजिद ये बताएं जरा, अगर ब्रिलियम जो है, will this be stable or not? ब्रिलियम के 4 होते हैं. सेम सिचुएशन बताएं, बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जी जी, ग्राउंड स्टेट में
नहीं करेगा यार, 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, 4 इधर है 4 इधर है, ये पिक्चर सामने बनी हुई है। हाँ, तो ग्राउंड स्टेट इसकी यही है ना कि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। आप ग्राउंड स्टेट किसको समझते हैं, आप ग्राउंड स्टेट किसको समझते हैं? सिर्फ ग्राउंड स्टेट सिर्फ यही नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट है अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट बनेगी अगर आप नीचे से फिल अप करना शुरू करें। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक लास्ट एग्जांपल ऑफ कार्बन। जो कार्बन है इसमें 6 होते हैं, सो 2 और 4 है। ठीक है, सो अगर कार्बन मॉलिक्यूल जब बनेगा, यू कैन फॉरगेट the 1s electrons in both carbon atom because they are very tightly bound to the nuclei. So essentially जो outer 4 इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम्स के, वो बॉन्डिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। सो उन 4 में से 4 इसके और 4 इसके 8 हो गए। सो टोटल 8 हो जाएंगे ना, एक एटम में 6 होते हैं ना, टोटल 12 हो गए। 12 में से जो 4 है उनको भूल जाए, क्योंकि दोनों की जो ग्राउंड स्टेट में 2 2 है ना 1s के अंदर, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। ठीक है, और सिर्फ जो बाहर वाले 4 4 हैं, लेट्स थिंक अबाउट देम। अब ना भी भूलें तो 2 इधर हैं 2 इधर हैं, सो दैट्स टेकन केयर ऑफ। बट इट्स नॉट अ गुड वे टू टॉक अबाउट देम कि जी 2 इधर हैं 2 इधर हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली दो दो उसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप इमेजिन यूं कर लें, ये एक सी है और ये इसके जो 4 हैं, इसका ये सी है। सो ये जो 2 है और ये 2, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड एनी लॉन्गर। सो इनका ये कहना है कि ये 2 और 2 4 मिलके 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, इट्स नॉट रियली रियलिस्टिक बिकॉज दैट डजंट हैपन। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द 4 हियर एंड 4 हियर। तो 8 हो गए टोटल। लेट्स से 2 इधर 2 इधर 4, 2 इधर और 2 इधर, ये हो गए 8। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया भाई दबे? 2, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो आपस में ये कैंसिल हो गए, और ये 2 और ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन है जो 2 सिग्मा में 2 पाई बॉन्ड में। ठीक है, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 2, सो दिस इज दिस। अच्छा, अब तक हमने जो सिचुएशन ली इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। अलबत्ता बहुत का ऐसे भी होता है कि लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसी और स्टेट में चला जाता है या कोई पास और स्टेट है, तो अच्छा नहीं, इधर थोड़ी सी गड़बड़ होगी है। ये इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 2px भी है 2py भी है। ठीक है, तो ये असल में जो 4 इलेक्ट्रॉन चारों इसी में है, बॉन्ड तो 2 है, तो जो स्टेट बनेगी ना कॉन्फ़िगरेशन वो ये है के। इसका मतलब है कि दोनों एटम्स के जो के शेल हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, एंड देन सिग्मा जी 2s, सिग्मा यू 2s, एंड देन पाई यू 2p4। इस तरह से लिख लें, या यू कैन राइट एक्स एंड वाई दोनों में 2 2 लिख लें, क्योंकि ये 2 फोल्ड डीजनरेट है ना, 2px 2py। तो ये एक स्टेट है। अलबत्ता जैसे मैं कह रहा था कि ये जो स्टेट है ना, दिस लाइज वेरी क्लोजली टू दिस। तो इवन एट ग्राउंड स्टेट जो इनमें एनर्जी डिफरेंस है, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द photons that exist at this normal temperature. So the carbon ground state also exists in this molecular form, pi u 2p, 3 इसमें लेट्स से, और एक जो है वो इसमें। अभी भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही है। ठीक है, लेकिन अब जो एक फर्क है वो ये कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर है। देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर ये इस 4 के अंदर 2 अप है तो 2 डाउन है। सो दिस इज अ नॉन मैग्नेटिक मॉलिक्यूल, एंड दिस कैन बी अ मैग्नेटिक मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो अगर वो दोनों उनकी स्पिन सेम है, यू कैन गेट नेट स्पिन। एंड इफ देयर स्पिन इज, क्योंकि ये दोनों अनपेयर्ड और इंडिपेंडेंट पे हैं,
they can also have a different spin as well, but हमें पता है कि Hund's rule ये कहता है कि if you have multiple unpaired electron, the state with all spins aligning, that actually is a lower energy state. So this molecular configuration will have a net magnetic dipole moment, which means that this will act as a diamagnetic material, I think, that have this one, and this is a paramagnetic material. Okay, now before I close this lecture, I just have one comment on these situations where we say that we have atoms, or it can also be molecules सर that जी सर ये C2 के आगे आपने K लिखा है, ये जरा एक्सप्लेन कर देंगे K इसका क्या ये मतलब है? के का मतलब है कि इसके शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड्स. ये के एटॉमिक स्टेट है, ये के भी एटॉमिक स्टेट है, ये मोलेकुलर स्टेट्स नहीं है. ओके ओके थैंक्स. ठीक है, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये शील्डेड है और दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्मिंग बॉन्ड्स. अच्छा, हीलियम जो है ना, अगर इसको आप ठंडा करना शुरू करें तो 4 केल्विन से नीचे ये लिक्विड बन जाती है. इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर देयर इज नो एन अट्रैक्शन बिटवीन दीस हीलियम मॉलिक्यूल्स, इसीलिए लिक्विड बनी है ना, अदरवाइज तो वो गैस आप जितना मर्जी ठंडा कर ले वो गैस ही रहे. लिक्विड स्टेट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल जब मैं लफ्ज बोलता हूँ तो इसका मतलब हीलियम एटम भी है. और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो असल में आती है इस वजह से कि व्हेन यू हैव वन मॉलिक्यूल या एटम ऐसा जो बॉन्ड नहीं बनाता, फर्स्ट करें हीलियम एंड दिस वन, तो व्हेन दे कम क्लोजर द इलेक्ट्रॉन मोशन गेट्स कोरिलेटेड. अब ये थोड़ा लूज सेंस में वर्ड है, ये वही है जो इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन मैंने पहले बात की थी कि अगर इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर हैं, तो देन जो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दे वुड वांट टू बी ऑन द अदर साइड, not only because of the Coulombic repulsion between them, but also because if they have same spin, Pauli principle is also trying to keep them apart. तो ये जो correlated motion है, इसको बहुत का dispersion force भी कहते हैं, that that one atom's electron cloud disperses the electron cloud of the other one, and then there is a small attractive force that can result from this type of dispersion force. तो ये जो dispersive forces हैं, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन हो सकती है, और इस तरह के बॉन्ड्स को वंडरवॉल बॉन्ड्स या वंडरवॉल फोर्स इस तरह की चीज कहते हैं. एनीवे, सिंस वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट एंड we won't be discussing that furthermore. Okay, so any questions so far? So the molecular physics, unfortunately and fortunately, it's very interesting, but it requires a lot of complicated either analytical or computational techniques, which is interesting because के जो हमारे इर्द गिर्द materials हैं उनकी properties को अगर आप explain करना चाहते हैं why certain things happen and certain don't, that's the way to go. ठीक है? So this is where sort of physics guides you towards understanding properties of materials. So from this, you can essentially see that all of the chemistry is essentially the application of quantum physics. और इस कोर्स का जो शुरू में बेसिक मकसद था, अगर आपको याद हो तो यही था, that we'll try to do only one thing, and that is learn how to compute states and energies of different multi-body quantum system. So that's what we have been trying to do. So अब इसके बाद things are still there that we can talk about. We go to multi-electron molecules and try to build the molecular orbital, just as we tried with the Hartree-Fock method and selected determinant. And actually that's the way people do. लेकिन चूंकि अब उसके बाद method or physics, it's exactly the same, only it becomes computationally more expensive. So we won't be doing that.
So next 2 lectures हैं, so we'll spend on solving Dirac equation and finding the Hamiltonian for the hydrogen atom again, where we will see how the spin orbit and other relativistic effects come in. जैसे जो जब हम Hamiltonian आपने लिखा हुआ है, so we haven't considered the possibility of electron, let's say, traveling at a speed very close to the speed of light. अब मैं वो speed travel की बात कर रहा हूँ, just classical way of thinking. तो अगर आप वो imagine करें, then the Hamiltonian जो हम वो kinetic energy लिखते हैं कि p²/2m, that is actually not valid. It's only valid if your velocities are small. So अगर आप classically उस Hamiltonian को बेहतर करना चाहते हैं, तो classical way of thinking ये है कि you try to correct that momentum and think about adding a term proportional to momentum power 4 and so on. So इसी तरह, you know, there are other quantum effects, for example, smearing out of electron charge, etc. So that comes out naturally from that. So मेरा जो goal है वो 2 lecture में ये है कि we at least try to see the Hamiltonian out. लेकिन अगर time हुआ तो we will also find the energy corrections to the hydrogen atoms energies in the presence of those relativistic corrections. लेकिन वो एक trivial काम है, वो नाम ही हम कर सकेंगे. You can do it using perturbation theory. Okay, so I hope कि आप लोग अपने presentations तैयार कर रहे हैं. अच्छा, next Monday जो है, we don't know कि what's gonna happen, क्योंकि लाहौर में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट ने मंडेज को बंद करने का कहा है. अभी पता नहीं वो ऑर्डर अगर चेंज ना हुआ और वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल हुआ, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. आइदर देयर वोंट बी एनी क्लासेस ऑन मंडेज, और वो क्लासेस हो सकता है यूनिवर्सिटी आगे शिफ्ट कर दे कहीं पे, और हो सकता है कि ये क्लासेस ऑनलाइन चली जाए. ठीक है, तो अगर ऑनलाइन हुई तो मैं क्लास इधर ही लूंगा, और आप लोग अगर कैंपस में होंगे तो यू आर अगेन वेलकम टू कम. ठीक है, बट यू आर नॉट फोर्स टू कम. और अगर यूनिवर्सिटी ने छुट्टी करा दी तो फिर जहां पे भी वो लेक्चर शिफ्ट होगा विल फॉलो दैट. अगर तो मेरा दिल तो करता है कि वो छुट्टी हो या ना हो, वी शुड यू नो गेट डन विद इट, बट लेट्स सी व्हाट द ऑर्डर्स कम. ओके, सो थैंक यू.